let's begin with basics. This series can be related with a film. एक मूवी को आप इमेजिन कर सकते हो. एक मूवी का मजा तभी आता है जब आपने फिल्म को शुरुआत से देखा हो. अगर डायरेक्ट आपको कोई क्लाइमेक्स पे डाल दो, ऑब्वियसली क्लाइमेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हाट इफ यू डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर स्टोरी? आपको नहीं समझ आया? आई एम हियर टू टेल यू. Hello everyone, welcome to Defense Mania and we welcome you all to this masterpiece series. I'm Shivani Soni and if I tell you about me, I have cleared AFCAT 4 times in a row, cleared CDS 4 times in a row. I'm specialized for CDS GS section because my OTA score has always been more than 100 marks. I have authored a book named Constitution at Your Fingertips, a simplified book on polity which eliminates all the complexity, all the confusion of constitution. Many of my students have cleared its polity confusion by reading this book only. I have been featured by Rediff.com, Indian Express on this International Women's Day. I've also received Golden Educator Award by Class Plus. आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों हुआ? Because now my entire team is on mission to provide the finest quality of study material in the lowest price ever. Because after all, education is a necessity, not the luxury. And the real competition begins when ground is for everyone. It cannot be like कुछ privileged students है जो privileged society से belong करते हैं, well background है उनका, they got all damn guidance, all mentorship, all the study materials, and on the other hand, there are some underprivileged students, some unfortunate students who are just struggling to find a good resource, right? So now Defense Mania is here to level up your ground. सेम लेवल पे आ जाओ, फिर रियल कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं, फिर रेस स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रीम यूनिफॉर्म को पाने के लिए, राइट? टॉकिंग अबाउट द सीरीज में क्या होगा, व्हाई दिस इज नीडेड नाउ. बहुत सारे लोग फ्रेशर्स होंगे लेकिन उन्होंने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तो पास किया होगा, बहुत सारे रिपीटर्स भी होंगे. नाउ व्हाई डिफेंस मेनिया इज सेइंग लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स, because it is very very required. If I tell you about the statistics, 90% of students, yes, 90% of students fail because they have poor clarity of basics. आप चाहे किसी के भी resources से पढ़ लो, they'll tell you how to clear CDS, how to clear AFCAT, how to clear CAPF, राइट? उनका जो कॉम्प्लेक्स सिलेबस है वो आपको टीच करेंगे, बट मीनवाइल आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है कि मुझे तो इतनी बेसिक सी चीजें नहीं पता, मुझे इस स्कूल में नहीं पता थी, स्कूल का याद नहीं है, ठीक है? नाउ आप कोप अप करने की कोशिश करोगे ये सोच के कि आई एम वेरी वीक स्टूडेंट, आई हैव टू जस्ट गो थ्रू व्हाट ऑल my teacher is teaching in CDS, AFCAT and CAPF syllabus, right? ये एक लैडर है, ये एक प्रोसेस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करती है. बट जो लैडर है वो स्टार्ट होती है बेसिक से, ठीक है? ये स्टार्ट होती है बेसिक से. इस लैडर को अगर आपने छोड़ दिया, यू कैन नोवेयर रीच टू दिस लेवल, ठीक है? यू कैन नोवेयर रीच टू दिस लेवल. इसलिए बेसिक्स को क्लियर करना इज द फंडामेंटल स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस. And this will not only help in your written exams for defense, like कोई भी एग्जाम को आप अपियर कर रहे हो, CDS, AFCAT, CAPF, INET, टेरिटोरियल आर्मी, NDA, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ना आए, बट जो क्वेश्चन का बेसिस है वही आपको समझ नहीं आएगा, तो यू विल बी ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड कि इतनी पढ़ाई के बावजूद आई एम सो वीक इन स्टडीज कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. The series will also be very very helpful for SSBs. I would rather say SSBs के लिए ही ज्यादा काम आ सकती है. क्यों? Where in SSB? It will help you in group discussion. I have attended 8 SSBs across the nation. From north to south, I have seen almost every board. I have also analyzed कुछ students होते हैं जिनके basics clear होते हैं.
तो वो ग्रुप डिस्कशन पे एक अपर हैंड पे रहते हैं, दे आर एबल टू डिस्कस द फैक्ट्स। ठीक है, आप चाहे लेक्चरेट की बात कर लो, लेक्चरेट में यू गेट 3 मिनट्स टू प्रिपेयर। 3 मिनट्स में कैसे प्रिपेयर करोगे? बिफोर एसएसबीज यू पीपल स्टार्ट मगिंग अप थिंग्स, राइट, जो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा, यू विल बी एबल टू मग अप योर आइडियाज, यू विल बी एबल टू अरेंज, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इन फाइन मैनर, right? This will definitely help you out in your personal interview, right? Personal interview में always and always आपसे basic से question पूछे जाते हैं, basic geography से, basic history से, जो आपने सोचा होगा कि हमने अपने written exam के complex syllabus में तो कभी नहीं पढ़ा, अब ये कहां से पढ़े? ठीक है, एसएसबी के लिए अलग से पढ़ाई कैसे करें? The crux is you should know the basics. और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो बच्चों के समझ में नहीं आती वो ये है, इट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। कैसे? कॉन्फिडेंस अलग तरह से भी आ सकता है, बट व्हाट इफ यू डोंट हैव एनी कंटेंट टू स्पीक? ग्रुप डिस्कशन में आप बहुत अच्छा बोलते हो, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन व्हाट इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू स्पीक ऑन? आपको इंडिया चाइना रिलेशन दे दिया है, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन बोलोगे क्या? If you have content, you can practice on your then communication skills. As I said, content plays very important role. Obviously, body language is there, team spirit is there, but what if you don't have a content? So this series will provide you with the content. फिर आप अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, देन यू विल डेफिनेटली गोना अचीव योर ड्रीम। ठीक है, इतना पता लग गया कि बेसिक्स के बिना तो काम नहीं चलने वाला। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है स्कैटर्ड रिसोर्सेस। ठीक है, everyone is just blindly following, blindly teaching और blindly following कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर को देखा, इस लेवल की चीजें आती है एंड वी डायरेक्टली जंप ऑन दोज लेवल, लेकिन सब उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वी डज नॉट नो द लिमिट्स ऑफ बेसिक्स, कहां से शुरू करना है, कहां खत्म होता है, क्योंकि वी हैव टू बी इन डिफेंस जोन ओनली। हमें इससे नीचे भी नहीं जाना, उससे ऊपर भी नहीं जाना, उससे कुछ ज्यादा भी नहीं, उससे कुछ कम भी नहीं, हमें अपने डिफेंस जोन में ही रहना है, बिकॉज वी आर वेरी डेडिकेटेड, डिटरमाइंड टू डॉन द डिफेंस यूनिफॉर्म ओनली। हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स ही पहननी है। तो उसके लिए बेसिक्स क्या होगा? बहुत ज्यादा कम भी ना हो जाए और यूपीएससी आईएएस लेवल भी ना हो जाए, है ना? वी शुड नो द लिमिट्स, दिस इज द प्रॉब्लम। सो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज हम क्या करने वाले हैं, हम सारे बेसिक्स को जानेंगे, जिससे आपके एटलीस्ट डिफेंस के रिटन एग्जाम्स, डिफेंस की एसएसबी का कंटेंट पार्ट आपका क्लियर हो जाए। विल नो द वर्ल्ड की अलग अलग लोकेशन। अगर कोई एसएसबी का रिपीटर यहाँ पे होगा तो प्लीज टाइप, आप क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हो ताकि हम सबको हेल्प मिले। ठीक है, आई ऑल्सो पुट वन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू मी, कुछ कुछ लोकेशन के बारे में, राइट? रिपीटर्स, जो भी आप रिपीटर हो, एटलीस्ट वन क्वेश्चन कमेंट में ड्रॉप करो कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था बेसिक्स से। ठीक है, वर्ल्ड की लोकेशन, कोई भी वाटर बॉडी का रूट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए थे। आई विल आल्सो ड्रॉप द क्वेश्चन, यू विल आल्सो ड्रॉप द क्वेश्चन। या आप फ्रेशर भी हो, आपने सुना होगा रिपीटर्स को, राइट? रिपीटर्स को वैसे भी ज्ञान देने की बहुत आदत होगी और आपने क्वेश्चन सुने भी होंगे। तो ड्रॉप द क्वेश्चन डाउन ताकि हमें लेवल पता चले कि हमें कैसा बेसिक्स पढ़ना है। ठीक है, will also know something about India, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। As a defense aspirant, we should know the basics. Will also know the important events after independence. ये बहुत इंडियन हिस्ट्री में 1947 तक हम सब पढ़ लेते हैं, बट व्हाट आफ्टर 1947? उसके बाद जो पॉलिटिक्स डेवलप हुई, इकोनॉमी में क्या चेंज आया, हमारे रिलेशंस चाइना के साथ, यूएस के साथ, इसराइल के साथ कैसे डेवलप हुए, हम इतने सारे प्रोविंसेस थे, तो एक कंट्री बनके हम कैसे आए? ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहे हैं ना? माइंड यू, इतने सिंप्लीफाइड वे में इस मास्टरपीस सीरीज में चलने वाले हैं कि यू विल बी मास्टर इन स्टोरी टेलिंग अबाउट कंप्लीट बेसिक्स। हम इसमें टाइमलाइन वाइज चलेंगे।
will know how defense sector emerged. ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए. If you are into defense, you are aspiring to be in defense, आपको ये डिफेंस सेक्टर के बारे में सब पता होना चाहिए. हमारे आर्मी कैसे वर्क करती है, हम कैसे डेवलप हुए, ठीक है, हमारे इक्विपमेंट्स कैसे इस लेवल तक पहुंचे हैं. विल सी वन बाय वन अबाउट दैट. ठीक है, this will be the most interesting show, I promise. And yes, मैं पक्का ये सब करा दूंगी. You need not to worry for that. And the first video will be about events after independence only. दिस विल बी इन टाइमलाइन. सारी चीजों को मर्ज करते हुए चलेंगे. हर एक ईयर में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं ताकि आपकी एक क्रोनोलॉजी बन सके. ठीक है, यू हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे फर्स्ट वीडियो का लिंक होगा. ठीक है, हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट. हमें इसमें बहुत मेहनत लग रही है. वी आर अप्लाइंग सो मच ऑफ एनर्जी ओनली एंड ओनली कि आपका बेसिक्स क्लियर हो सके और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओ, अपनी एग्जाम को एक्सेल करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. आई एम शिवानी सोनी. जय हिंद एंड गुड बाय.